Hello friends, now this is your next chapter, that is the bill of exchange or bills of exchange. Okay, we know children, so many transaction in the business has taken place on credit, means udhar, and mostly transactions that is taken on payment near future. Hardly you can say that 20% of the entire business is cash and carry, otherwise 80% business has run on credit. So for that a specific provision is made between the buyer and the seller, okay, in which both are bound with each other to give the goods and to receive the payment. Okay, in mechanism in which this entire procedure is done, that is the subject of bills of exchange. Okay, so first thing we have to understand this, that there are two parties in the bills of exchange. One is the buyer and another is the seller, and one mediator is there who has a responsibility, okay, for the payment on the behalf of buyer. Okay, so this entire transaction, it is taken place between the buyer and seller with pay. So what is the exact sense of bills of exchange? How these transactions are taking place, and at the same time what procedure we have to follow, what kind of accounting treatment we have to do, that entire things we will try to understand in this chapter. Okay, so first let's try to understand what is bills of exchange. Okay, it is saying in present time, with the increase in the number and size of business, or you can say the volume of business, the number of credit transaction and its importance are also increasing day by day. If the payment of the amount of goods given in credit is not received on time, many times businessmen have to face financial problem, and it is also affect their other transaction. Means 80% transaction is taken on credit. If that credit money is not received by seller within a time, then definitely he face another kind of financial crisis in his business. So for that, one specific provision must be there in account, and that is the subject of bills of exchange. To maintain the financial liquidity, normal businessmen use the document through which the person from whom an account is receivable accept his debt in writing, that state the time of payment of the amount. Means a person who is purchasing the goods, okay, definitely debt is on him. It is his responsibility to pay the money to the seller in a specific time period. So he accepts to pay the time stated in the document. If the debtor failed to pay the document, this document can be used as a written evidence of the dues. Okay, means whenever transaction is taken place, there must be a written matter, because so many times I gave you this example कि भाई आप मारने वाले की लकड़ी को पकड़ सकते हो,
बोलने वाले की जबान को नहीं पकड़ सकते हो। मीन्स जो दिखता है वही सबूत है और जो दिखता नहीं है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको कोई आप सबूत के तौर पर गिन सकते नहीं है। सो इन दिस वे द डॉक्यूमेंट विच आर यूज्ड, that is known as the bills of exchange and promissory note. Later on I will tell you what is the basic difference between the bills of exchange and promissory note, but first of all let's try to understand the meaning of bills of exchange. Okay, now return it, read it and listen it carefully. A bill of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order signed by the drawer. First thing is that it is a negotiable instrument, means it is transferable. आप दूसरे किसी को इसकी लाइबिलिटी सौंप सकते हो। फर्स्ट थिंग इज दैट। सेकेंड थिंग, it's a unconditional order, that is the most important word. शर्त रहित ये है डॉक्यूमेंट है, यानी अगर आप पर्टिकुलर टाइम में आपका डेब्ट क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो ऐसा नहीं लिखा है कि भाई आपको हम जेल भेज देंगे या आपका जो है हम सामान जब्त कर लेंगे, बराबर। ऐसी कोई उसके अंदर कंडीशंस नहीं है, एंड दैट्स व्हाई इट इज अ अनकंडीशनल, देयर इज नो कंडीशन एट ऑल। ओके, बाय द ड्रॉअर मीन्स हु मेक इट, डायरेक्टिंग टू अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन अमाउंट मनी टू द स्पेसिफाइड टाइम टू अ सर्टेन पर्सन, बराबर है। तो यहां पर जो है सेलर बिल बनाता है, यानी उसको ड्रॉअर कहते हैं, और वो बायर को यानी ड्रॉई को देता है और ड्रॉई उसमें साइन करता है, बराबर है। और वापस से वो जो है ड्रॉअर को रिटर्न करता है, जो इस बात की गारंटी है कि भाई वो टू द टाइम पैसा पे करने वाला है, बराबर है। या तो वो पे करेगा या उसके बिहाफ पर कोई और पे करेगा, यानी बैंक करेगा। इज इट क्लियर? अकॉर्डिंग टू हिज ऑर्डर और टू द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या जो भी जिसके भी हाथ में वो है या जिसके भी पास में वो है, ठीक है। तो सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर देयर। अगर आप इन डेफिनेशन को पढ़ते हो तो कुछ इसके जो है फीचर्स है, लक्षण है। क्या लक्षण है? फर्स्ट इट इज इन राइटिंग, रिटर्न फॉर्म में होता है। सेकंड, अनकंडीशनल है भैया, शर्त रहित है, कोई कंडीशन नहीं है। तीसरा, पर्टिकुलर पर्सन के लिए होता है। चौथा, बिल को कोई एक्सेप्ट करने वाला होता है, कोई उसका रिसीवर होता है। पांचवा, इसमें ऑर्डर है, पेमेंट की बात है, बराबर, रिक्वेस्ट नहीं है, ये याद रखना। डेफिनेट अमाउंट होता है, फिक्स अमाउंट होता है, क्लियर डेट मेंशन की हुई होती है, टाइम ड्यूरेशन फिक्स होता है, मैक्सिमम 3 मंथ। जो बिल बनाता है और जो बिल एक्सेप्ट करता है दोनों की साइन होती है इसमें रेवेन्यू स्टैंप लगाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी कानूनन वैलिडिटी है। अगर आपने टू द टाइम पेमेंट नहीं किया भाई तो मे बी चांसेस कि आपको जो है सीयू का सामना करना पड़े। सीयू मीन्स केस, झेलना पड़े। इसको डिमांड किया जाता है स्पेसिफिक टाइम के लिए, बराबर है। और जो बायर होता है वो उस बिल का स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है उसे कि हाँ भाई मैं इस टर्म्स एंड कंडीशन पे ये पेमेंट देने के लिए रेडी हूँ। तो इसमें मोस्टली 3 पार्टी होती है। वन इज द ड्रॉअर, ड्रॉअर मीन्स सेलर, एक्सेप्टर और द ड्रॉई, ड्रॉई मीन्स बायर।
एंड पेई मीन्स या तो वो खुद ड्रॉअर होगा या फिर उसके बिहाफ पर कोई कलेक्ट करने वाला बैंक होगा, बराबर है। तो इस तरह से ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पेई, ये तीन लोग जो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के जो है भागीदार होते हैं। भागीदार मतलब पार्टनर के उसमें नहीं बोल रहा हूँ, ये तीन पार्टीज होती हैं, बराबर है। अब मैं आप लोगों को एक स्पेसिमेन दे रहा हूँ यहाँ पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, इसको आप देखिए तो आपको समझ में आएगा ये कैसे लिखा जाता है। फिर हम इसके ऊपर आगे बात करेंगे और आप लोगों को उसके बाद में मैं प्रोमिसरी नोट क्या है उसके बारे में डिस्कस करूँगा। सो सी इट, देखिए। अब अगर आप इसका स्पेसिमेन देखो चिल्ड्रन बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, सो इट इज सेइंग दैट, देखो ऊपर सबसे पहला एड्रेस दिया हुआ है मित्र मिलन सोसाइटी, नारायणपुरा, अहमदाबाद 13, थोड़ा बी जैसा दिख रहा है, बेसिकली इट इज 13, डेट 9/8/2016। नीचे लिखा हुआ फॉर द वैल्यू रिसीव्ड बाय यू, बराबर है, मतलब आपको जितने की वैल्यू का सामान मिला है, पे ₹10,000 ओनली, उसकी कीमत 10,000 रुपया है, वो पे कीजिए। किसको? टू राकेश, राकेश को पे कीजिए। और एज पर हिज ऑर्डर या फिर ऑर्डर के हिसाब से पे कीजिए आफ्टर 3 months फ्रॉम टुडे, ठीक है। तो यहां पर जो है अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे टू श्री धवल, सरगम फ्लैट, जोधपुर, अहमदाबाद दिया हुआ है, बराबर है। धवल जो है यहाँ पे देखो सिग्नेचर करके एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि वो क्या हुआ, वो जो है बायर हुआ और उसने वो पे करना है, बराबर है। और कविश क्या हुआ? सेलर हुआ, वो ड्रॉअर हुआ। तो कविश ने बिल बनाया है, बिल बनाकर धवल को भेजा है और धवल को बोला है कि भैया वो जो पार्टी है उसको आपने इतना पे करना है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह से बच्चों बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है बनता है। अब अगर आप इसको अंडरस्टैंड करो तो देखो जरा आगे। अब डेफिनेट पर्सन, तो इन द बिल each person must be definite individual. Here Kavish is drawer and the Dhaval is the acceptor and Ritesh is the receiver. Amount, the amount payable by the acceptor must be clearly shown in the bill. Okay, acceptor means who? Buyer, जिसने खरीदा है वही तो पे करेगा भैया, वही तो जो है ये गारंटी देगा कि भाई मैं पैसा चुकाऊंगा। Is it clear? So the amount is shown both the figure and word. You can see that. Date, the amount on which bill is drawn shown in the bills. Year 9/8/2016 is the date. Now what is the period? देखो नीचे लिखा हुआ है for his order after 3 months, यानी कि 9/8/16 से लेकर 3 महीने। अब आप 9/8/16 से गिनो तो 9/8/16 से 9/9/16, 9/9/16 से 9/10 और 9/10 से 11/10/16। अब 11 तारीख 11/10/16 सॉरी 9/11/16 9/11/16, लेकिन 9/11/16 के ऊपर और 3 दिन मिलते हैं एंड दैट इज कॉल्ड द ग्रेस पीरियड, यानी कि 9, 10, 11, 12, 12 तारीख को जो है आपको फाइनली पेमेंट कर देना। उससे पहले कर दो तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो फिर उसके बाद में फिर आपको जो भी कानूनी पचड़ा है वो सब में आपको जो है मगजमारी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट सिग्नेचर,
द बिल मस्ट कंटेन द सिग्नेचर ऑफ 2 person drawer एंड द एक्सेप्टर. ड्रॉअर मीन्स द सेलर एंड एक्सेप्टर मीन्स द बायर. ओके. इन द स्पेसिमेन द सिग्नेचर ऑफ कवीश एज अ ड्रॉअर ऑफ द बिल एंड द सिग्नेचर ऑफ धवल इज द एक्सेप्टर ऑफ द बिल. रेवेन्यू स्टैम्प इज एसेंशियल. In order to recognizing bill legally, it is necessary to affix a revenue stamp in the proportion of the amount of the bill. The document without a revenue stamp cannot be considered as legal. Next one is your promissory note. देखो बच्चों, गुड्स के एवज में जब आप किसी को पेमेंट की बात करते हो तो दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. लेकिन जब आप किसी को, जिस तरह से आप कमोडिटी सोल्ड करते हो, ऐसे जब आप किसी को पैसे की उधारी देते हो टाइम 2 महीने 3 महीने टाइम पीरियड के लिए, तो उसमें जो लिखा जाता है दैट इज नोन एज प्रोमिसरी नोट. तो प्रोमिसरी नोट इज फॉर गुड्स एंड बिल्स ऑफ प्रोमिसरी नोट्स इज फॉर मनी एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज फॉर गुड्स. तो ये अपने को ध्यान में रखना है. और इसके भी वही सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं प्रोमिसरी नोट के जो बिल्स के होते हैं. बराबर है. अब आप लोगों को ग्रेस पीरियड की तो मैंने बात कर दी. अब इस तरह से यहाँ पे 2 चीजें होती है. वन इज द बिल्स रिसीवेबल एंड सेकंड इज द बिल्स पेएबल. तो डेफिनेटली जो सेलर है उसके लिए बिल रिसीवेबल होगा और जो बायर है उसके लिए जो है बिल पेएबल होगा, क्योंकि उसको पेमेंट करना है और सेलर ने जो है पैसा रिसीव करना है. जो बेचेगा वो पैसा लेगा और जो खरीदेगा वो पैसा देगा. ओके. तो जो एक के लिए रिसीवेबल है वो दूसरे के लिए क्या होगा, पेएबल होगा. इतना मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिया. अब अगले पार्ट में, नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, जर्नल कैसे लिखेंगे अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन पर, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे. ठीक है. बाय. सी यू ऑल ऑफ यू. टेक केयर.